नमस्ते, अभिनंदन, अभिवादन मित्रों। आपके डिस्कशन सीरीज ब्रश द बुशेस में ऑन यूट्यूब चैनल एजर्टिव आयुर्वेदा। जब शुरुआत हुई थी इस चैनल की पिछले महीने में, तो मेरे एक मित्र ने कहा, जो कि स्वयं एम फार्मा आयुर्वेद और पीएचडी हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से डिग्री लेते हुए वो इमामी पहुँचे। इमामी से फिर इस समय डावर में सर्व कर रहे हैं, डॉक्टर वरुण कुमार सिंह। और उन्होंने मुझसे लिखा कि सर, फार्मेसी के एजुकेशन पर भी एक सीरीज करिए। तो अभी जो सीरीज़ मुझे सब करनी है आपकी डिमांड पर, वॉट एवर द टाइटल्स आई हैड नोटेड, just if I go through those titles, these are patent, then the IPR, then the Ayurvedic Ahar, then the why Chinese medicines are having prominence, of course the AFI, API details and the history, then the phytopharmaceuticals, then the rules for the clinical trial, what rules are applied for the Ayurvedic medicines for the clinical trial. And of course, my good friends are asking me to speak on the bhasm, to speak on the put. So I shall do everything, but little bit time is required, and that will be in the due process. Every title will be addressed. Recently on the Ayurveda Network project of the Banaras Hindu University, I had completed 3 series on the Kajali, Rasparpati, Potali and the Rasindu. In the same way, people are saying that you must have a series on the bhasm, you must have a series on the put, then the snake kalpana, sandhan kalpana, like that. These all the enthusiasm and the zeal of the PG scholars as well as the PhD scholars of the different corners of the country enrolled in the departments of the Rasas and the Veses Kalpana are hammering and demanding to address these issues. Really, I am very much delighted and happy what the confidence you are showing, and you are eager to hear the interpretations and the interactions what we are having on this thesis. Yes, always in a mind of professor, thesis is always running, either of this scholar or that scholar. One thesis just submitted back 4 or 5 days of the PG. Now the next thesis is in the agenda is the one of the PhD or the PG, like that every time. So I am using the word thesis, though. So I am willing to word the different themes. There was a slip of the tongue, I said thesis. Different themes of our curricula, syllabi of the PG and the PhD specifically. And of course, somehow the extracurricular activities also. So today I am just in the series, I am willing to address the education perspectives of the degree holders of the M Pharma Ayurveda and the B Pharma Ayurveda. Before telling you anything in this regard, I wish to remember and pay my highest reverence to the Professor P.N.V. Kuru, the Vice Chancellor of the Gujarat Ayurveda University for 2 terms, who recruited me and the many others like Professor Anup Thakur, Dr. Mahesh Vyas, Hitesh Vyas, Dr. Manjusha Rajgopal, Dr. Vijay Patgiri, Dr. Raghu, in the service of the Gujarat Ayurveda University, the part IPGTR. Friends, this is the brainchild. This pharmaceutical, Ayurvedic pharmaceutical course is the really brainchild of
Professor P.N.V. Kurup, sir. When he was, the career of the Professor Kurup sir is unparalleled. Professional career. No one can touch that, starting from the medical officer to the Vice Chancellor via the WHO, deputation in the WHO and the DG of the CCRS and Director of the Gujarat State and Assistant Professor too. See what not he was. So, when he was heading the Gujarat State as the Director of Gujarat, he was thinking about a pharmacy course in the Ayurvedic pharmaceutics, and that was a really very real thought. He opened this course in the Rajpipla, and if this course has been understood by the authorities of that time and realized by the industry of that time, today's the situation of Ayurvedic industry, manufacturing industry, might be different, as good as we want. But see, for every event, there is a moment. You can say that it is destined. Somehow people, and I myself also believe in this theory of the destiny, cosmic plan. In the same way, किसी ने समझा नहीं उस बात को जब उन्होंने इस कोर्स को शुरू किया. अगर मेरी याददाश्त मेरे साथ है तो it was 1962. Then this course was closed. When he left Gujarat for higher positions, this course was closed. But you know, his vision, he got recognition of the B Pharma Ayurvedic degree from the UGC in the listed list, it is there. And still M Pharma Ayurveda is not there up to by best of the information. In the degrees recognized by the UGC, B Pharma Ayurveda is existing in the same time, from the same time. Maybe there are several reasons, maybe the products were not getting employment because the Ayurveda was not at the point of boom. Ayurveda is not acceptable in that 6th, 7th decade of the last century. Ayurveda is getting every boon in this 21st century or in the just last decade of that century. So the question is, this boon time must be utilized. And friends, you will be very happy to know it. Professor Kurup was a real visionary. Yes, I'm remembering a lot of interaction during my tenure at Jamnagar. I served under his adorable leadership for the 5 year, I think so. Yes, 5 year. And then meanwhile, in between, half 6-7 months, some intermediate arrangements when headed by the Professor M. Gohil sir, and then finally Professor S. Savarkar. I worked 1 year under his leadership as a Vice Chancellor there. Even today, I am also learning, and I may say that I'm learning a lot from the Professor S. Savarkar sir even today. So the point is that brainchild of the Professor P.N.V. Kurup sir, when he opened this course in the Rajpipla, was just having seed in his mind. And when he got the opportunity to head the Gujarat Ayurveda University, Jamnagar, as its Vice Chancellor, he opened this course once again, the B Pharma Ayurveda, M Pharma Ayurveda, D Pharma Ayurveda. The difference was here that these courses were now under the self-financing scheme. Right? And 99 was 20th November was 1999 was my interview date, and all names, different names, what I quoted, the interval of the 2 month, 3 month, like that.
and we all started working under him. And when I joined on 3rd January 2000, there were 3 courses were running. D Pharma, a bunch of 100 students from the Himachal Pradesh, more than that, a B Pharma course, and just after 1 year there was the M Pharma course. There was no taker, there was no graduate of the B Pharma Ayurved. So in the M Pharma Ayurved course, 8 seats were there, and all students were there for the having the B Pharm degree. I remember some names still today of that course. Love Chaudhary was there. It means not like that I am Chaudhary and I am remembering Love Chaudhary. There are some other name also. One Bajaj was there, and they are really very good workers, and we enjoyed working with them, and we did the theses and with dissertations with all those people, and the professor, Dr. V. Ravishankar and Dr. Subradhe, we all were engaged in the teaching of the IAPS. And that single room of the Department of Research, which IAPS, Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, borrowed. The seed was in Dhanvantari Mandir of the Jamnagar, one big hall of the research, and side was a classroom. That is the seed of this course nowadays in the A.K. Jamal building and the status of the INI. It is a long course of progress of the last 25 years. Wow, Dr. Jovan Moda, there must be a celebration, because this course was established in the 1998. Yes. And now it is the 2023. It is near about 25 years. Kudal, if you are listening, Mehul, what you people are doing? Huh? कुछ करो भाई. 25 साल या तो होने वाले हैं या बहुत जल्दी होने वाले हैं या हो चुके होंगे. डेट मैच कर लो. इसका फर्स्ट ऑर्डर कब निकला था IAPS का? शायद ये 99 में निकला होगा. हाँ, ऑफ कोर्स आई थिंक 99 में ही निकला होगा. तो चलो, अभी प्रिपरेशन का टाइम है आपको सिल्वर जुबली मनाने का. डेट मैच कर लीजिएगा. चलिए, तो ये 25 साल की जर्नी है, लेकिन हम पहुँचे कहाँ हैं? एंड व्हाट वी हैव अचीव्ड एंड व्हाट वी आर नॉट अचीव्ड, एंड व्हाई वी हैव नॉट अचीव्ड what we should have been achieved. These are the points which I would like to interact with you all, with the planning what we should do in the next. At one point, I appreciate all vice chancellors of the Gujarat Ayurveda University, including the director of the IPGTR, who have taken care of the postgraduate course in due course of the time, and then the status of the INI, Institute of the National Importance, and now the ITRA, Institute of Teaching and Research in Ayurveda. And if double IAPS, it was changes from IAPS to AIIPS, continuous promotion. I should remember Professor A.J. Bakshi sir. All these are the pioneer of this course and having a vision what should be. So in all this time we did a lot, we achieved a lot, no doubt about it, but we have lost some more very significant points. And so the education is not in that line, this Ayurvedic pharmacy education, which must be. The number one point is lacuna of a central registry system at par to the PCI, that is the Pharmacy Council of India. Why we don't have a APCI or some other name, Ayurvedic Pharmacy Council of India? And you know, since 2002, this proposed council for the Indian Pharmacy Council of the Indian System of Medicine or some other name, I had several times discussions with the DDC, in charge of the DDC for the long year, and contributed a lot, really contributed a lot, Dr. D.C. Katoch.
and every time it is like that it has been sent to the privilege committee of the Rajya Sabha. Yes, and because the PCI is not in the favor to have a parallel regulatory agency in the field of pharmacy education, and specifically the Ayurveda. Their approach is different. Even the PCI secretary had written a letter to the Honorable Vice Chancellor of the Gujarat University, Gujarat Ayurveda University, going out of protocol that no, you should take recognition from us, otherwise you should just amendment the things, and we are taking question, in the syllabus, the herbal medicine in B form, modern B form 4th year, but our Vice Chancellor, Professor P.N.V. Kurup sir, was adamant, and he refused even to answer the letter of the PCI because the university has some autonomous powers, and he applied and he wrote to them at that time Department of Ayush for the establishment of this registration body. If my memory is intact with me, and I'm no written document because all these things were happening before us. We were in the Jamnagar and really working for the establishment of the IAPS from our core of the heart, because we have this understanding that this course is really very vital and significant for the development of Ayurveda at the global scenario. Yes, I repeat my sentence, for the development of Ayurveda at the global scenario. Example is before you. The allopathic system of the medicine, initially 300 years back, both were the same, medicine and the pharmacy. But when they separated, the medicine is just developed like anything, and the pharmacy is developed anything. And here is the Remington clinical practice of the pharmacy, and here is the Love and Bailey and the Davidson. Both branches are running and supplementary and complementary to each other. What's wrong here with us? We know what is wrong here with us. This is our attitude, our thought process. We want to be everything in a single person. डेढ़ का फंडा प्रोफेसर एम एस बघेल सर बुलाते थे. अगर जामनगर की चर्चा करें और प्रोफेसर एम एस बघेल सर को न याद हम कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता. वो कहते थे कि 1.5 का फंडा आयुर्वेद को प्रगति नहीं होने दे रहा है. तो हम लोग पूछते थे, अनूप भाई, हम सभी लोग, ये लोग, मंजूषा मैडम और हेस सर, ये 1.5 का फंडा क्या है? तो कहते थे कि 1.5 का फंडा आयुर्वेद में ये है कि आयुर्वेद या तो मैं जानता हूँ और मेरी औलाद जानती है, अगर वो आयुर्वेद में है तो आधी वो भी मेरे बराबर वो भी नहीं जानती. तो एक मैं जानता हूँ और आधी मेरी औलाद जानते हैं, बाकी कोई आयुर्वेद जगत में आयुर्वेद जानता ही नहीं है. तो ये जो 1.5 का फंडा था कि हम सब कुछ हम ही कर लेंगे, हम दवाई भी बना लेंगे, हम सब कुछ नई दवा भी ढूंढ लेंगे, हम सब कर लेंगे, इसकी वजह से आयुर्वेदिक फार्मेसी का विकास नहीं हो पाया. और आज भी इससे लोग अलग नहीं होकर सोच पा रहे हैं. दुर्भाग्य है ये. इस सोच को बदलना होगा कि आप तब तक ग्लोबल मार्केट में आत्मनिर्भर भारत, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी सब नहीं कर पाएंगे. जानते हैं, आज मैं अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में भाग ले रहा हूँ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, जहाँ पर कि DTB कहलाती है, टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, TAB. बस उनका लंच ब्रेक हुआ है, सुबह 11 बजे से मीटिंग शुरू है, और मैंने कहा कि ये मुझे रिकॉर्डिंग करनी है क्योंकि मुझे शेड्यूल टाइम पर रिकॉर्डिंग करते जाना है. तो मैं लंच ब्रेक में लंच लेता नहीं हूँ, थोड़ा लाइट, और मैंने इस टाइम का मैं उपयोग कर रहा हूँ. मुझे सीनरियो पे दिख रहा है कि DST ऑफिस दिल्ली में हमारे सारे अदर एक्सपर्ट्स जो हैं वो लंच ले रहे हैं. तो डियर फ्रेंड्स, the point is here what? The point is we have to change our thought processes. If you are unable to change our thought process, we can't do anything. So apart from this preaching, I am coming to the facts. And facts are what? Facts are this: कि the development is here for the IAPS. They did a lot. I appreciate everyone. I said कि I must appreciate the all series of the vice chancellors there who have given a very good emphasis to the progress of the Institute of Ayurvedic Pharmaceutical Sciences, right from the founder Professor P.N.V. Kurup to the Professor Savarkar or the Professor Medhavilal Sharma ji, and then the
वैद्य Rajesh Kotecha ji, as a vice chancellor, he called me, and there was a committee on the Ayurvedic Pharmaceutical Institute, and he just said me, Anand ji, I was member of the committee of the Department of Ayush for the Pharmaceutical Sciences, and he called me. I was in the Jamnagar for a meeting of the IPGTR, and he said, आनंद जी, मैं ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जामनगर में चाहता हूँ, जो कि मिनिस्ट्री एक बनाना चाहती थी, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस। मैंने कहा सर, मेरा पूरा प्रयास होगा कि वो जामनगर में ही बने, क्योंकि जामनगर ही उसको एक नई दिशा दिया है और जामनगर ही उसके ऊपर काम कर रहा है। मैंने बताया ना कि एक कमरे से, प्रसाद विभाग के एक कमरे से AK जमाल बिल्डिंग उस समय आ चुकी थी जब मैंने जामनगर छोड़ा। तो उन चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा याद तो मेरे बहुत आ रही है, मैं बात करने का भी मन हो रहा है मेरा कि उन चीज़ों को, उस यात्रा को हम लोग बताएं कि कैसे नई बिल्डिंग बनी, कैसे बिल्डिंग आइडेंटिफाई की गई, फिर बगल में बनी, क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ, बहुत कुछ किया काम, सभी लोगों ने मिल के किया। और वैद्य राजेश कोटेचा जी ने एज ए वाइस चांसलर उसको और बढ़ाया, सभी लोगों ने बढ़ाया। चलिए, तो बात यहाँ पर आई कि फिर हम लैग कर रहे हैं कहाँ पर, कि एक हमारी सेंट्रल काउंसिल, और फिर उससे जो कुछ हमारे अमेंडमेंट्स हो जाने चाहिए। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में, ड्रग रूल 1945 में, उधर भी जा कर के कॉस्मेटिक रूल्स 2020 में, या जो भी रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं, अगर इंजर्शन वहाँ पर हो जाता है, ठीक है, एक जगह आपने दे दिया है, शिव बसंत साहब के सिग्नेचर से वो है नोटिफिकेशन में 2004 से कि जब आपको ड्रग इंस्पेक्टर्स की नौकरी देनी होगी तो आप भी फार्मा आयुर्वेद करेंगे। यस, यू हैव नोटिफाइड, थैंक यू, बट व्हाई यू हैव नॉट डिलीटेड देयर द BSc botany, why you have not deleted from that their an experience with an RMP? What's wrong in the deletion of that particular part? Who will hire a BMS or the B Pharma Ayurved when the BSc botany is available for the technical expert to get the license? Why people will expend more money if they have attitude that ये तो कोई भी बना लेगा, चूर्ण बनाने में क्या टेक्निकल की ज़रूरत है, आसवरिश बनाने में क्या किसी टेक्निकलिटी या स्किल की ज़रूरत है, या भस्म बनाने के लिए क्या स्किल की ज़रूरत है, कोई भी कर लेगा। लाइसेंस लेना है, एक टेक्निकल आदमी का नाम देना है, BSc बंदे को रखा है, BSc कितने निकल रहे हैं सबको पता है। एवरीवन इज नोइंग हाउ मच BSc वी आर प्रोड्यूसिंग। So you added, you means government, thank you, you added B Pharma Ayurved, really thank you. But what is the wrong in the deletion of the BSc? Then the very laughing point, we don't have such number of the B Pharma products, that is the 8,000 for each and every company. Fine, have a rule. From today, whenever the new factory will be opened, this BSc will not be there, only B Pharma Ayurved will be there. Here is the solution. मैं भी मानता हूँ कि 8,000 B Pharma Ayurved प्रोडक्ट आज की तारीख में भारत में नहीं है, तो सारी कंपनियों को निकाल दिया जाए, कहा जाए कि आप अपने यहाँ से BSc को हटाइए और उनकी जगह पर B Pharma Ayurved रख लीजिए, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वहाँ BMS भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं BMS की नौकरी वहाँ करने का एडवोकेसी नहीं करूँगा। BMS 8,000 के 80,000 मिल जाएंगे, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इन नौकरियों पर, इन लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स में BMS, ठीक है, एक BMS चाहिए, ये है, लेकिन ये टेक्निकलिटी वाले में BMS नहीं चाहिए, जहाँ आजकल BSc जा रहा है। तो BMS के साथ एक और जोड़ दीजिए ना साहब, MD आयुर्वेद रसशास्त्र भेषज कल्पना या MD आयुर्वेद द्रव्य गुण, आप ये भी नहीं कर रहे। आपने बहुत अच्छा किया, हम लोग हल्ला मचाते रहते हैं ना, एकेडमिया के लोग हैं,
हम लोगों ने काफ़ी हल्ला मचाया, तो चलिए आपने CDSCO में जो असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट आई, या जो अभी PLIM था वहाँ डायरेक्टर की पोस्ट आई, तो आपने वहाँ पर मतलब सरकार, मैं किसी इस समय के सचिव या इस समय के एडवाइज़र को नहीं एड्रेस कर रहा हूँ, मैं समग्र रूप से भारत सरकार को एड्रेस कर रहा हूँ, जब से भारत के संविधान से आई है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947 से, मैं तब सबको एड्रेस कर रहा हूँ। तो चलिए सरकार, आपने माना और इतनी सारी हम लोगों को सहूलियत दे दी। 1964 में हमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जगह दे दी। 64 में हमें तो जगह दी, लेकिन आयुर्वेदिक आदमियों को जगह देने में आपको और लगे 18-20 साल। आपने 82 में जाकर के आयुर्वेदिक व्यक्तियों को वहाँ नॉमिनेट होने की बात की। अरे आप तो ऐसा भी लिखे पढ़े थे सरकार की, 1 सेक्शन ऑफिसर डीलिंग विद द आयुर्वेदा इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो हमारा मालिक था, सेक्शन ऑफिसर, जो कि ISM को डील करता था। धन्यवाद कि हमारा डिपार्टमेंट बन गया PV नरसिंहा राव जी के कार्यकाल में, और वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी को नमन। देखिए, बिना एक राजनैतिक व्यक्ति के प्रभाव के कोई भी काम नहीं होता। वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी का संपर्क था माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिंहा राव जी के साथ, आपको डिपार्टमेंट मिल गया। वो लाइन हटी, 1 सेक्शन ऑफिसर डीलिंग विद द ISM इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। सेक्रेटरी हम लोगों को डील करने लगे। मैं फिर डेविएट नहीं होना चाहता, इस पर एक वीडियो और बना दूंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, कि कैसे कैसे हम लोगों के साथ क्या क्या अन्याय हुआ है। सब राजनीतिक भाषा का प्रयोग कर लूँ तो कांग्रेस सरकारों के द्वारा, और हाँ, वो जो पहली सरकार थी भाजपा की, उसमें भी आयुर्वेद का बहुत विकास नहीं हुआ था। ये तो वर्तमान का जो सेकेंड स्पेल आया है, इसमें बहुत ज़्यादा हर तरह से केयर किया गया, क्योंकि यहाँ पर तो 2014 के घोषणा पत्र में भी था। उसको थोड़ा सा अगले किसी वीडियो में ज़रूर करूँगा, वादा आपसे, और फैक्ट के साथ करूँगा कि कहाँ कितना विकास कब हुआ, और जो आज का है पिछले 10 साल से रेशियो 9 साल का, वो भविष्य में होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन भूतकाल में नहीं था। तो ये मैं नहीं बोल सकता कि न भूतो न भविष्य थे, लेकिन हाँ, न भूतो तो है, भूतकाल में तो नहीं था। भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अभी डॉक्टर जोबन मोड़ा जी ने बड़ा एक छोटा सा कहा था, जब मैंने लिखा था कि भाई अब मैं मार्गदर्शक मंडल में आ गया हूँ, तो जोबन लिखे थे उस पर कि नहीं, आप 2047 तक मार्गदर्शक मंडल में नहीं जा सकते। चलो भाई, आइए तो बात करें फिर से थोड़ा सा, और पूरी गंभीरता से ही मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक हम यहाँ जगहों पर चेंज नहीं लाएंगे, और वो मैंने इशारा किया कि एक हमारी काउंसिल, ठीक है, यूपी में जाकर के आपने बहुत प्रयास किया, आपका रजिस्ट्रेशन लखनऊ में होने लगा, किसी वेस्ट बंगाल में संभवतः होने लगा, गुजरात में होने लगा, लेकिन आपकी सेंट्रल बॉडी कहाँ है? और राज्यसभा के प्रिविलेज कमेटी में पड़ी हुई है क्या? अभी निकालिए वहाँ से। और मुझे ये कहने में अच्छा लग रहा है कि जब माननीय मुख्यमंत्री तत्काल श्री नरेंद्र मोदी जी श्री लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ आए थे गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस और इंटरनेशनल हॉस्टल और गेस्ट हाउस का उद्घाटन करने, तारीख मैं फिर बोल रहा हूँ, मुझे क्षमा करिएगा, तो मैंने ये साहस किया था। जामनगर के धन्वंतरी ऑडिटोरियम से जो गैलरी का रास्ता है 100-150 मीटर का, मैं एंकरिंग में प्रोफेसर HM चंदोला सर के साथ था, और जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय मतलब श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री लालकृष्ण आडवाणी जी जब निकल रहे थे, तो पता नहीं मुझ में साहस कहाँ से आ जाता है। उस 100 मीटर से भी कम है, वो 80 मीटर का होगा मुश्किल से, उसी बीच मैंने ये बात कही थी, जिस पर मैं आज भी गौरव महसूस करता हूँ कि आडवाणी जी से मैंने कहा कि सर, आयुर्वेदिक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो ये केस है वो राज्यसभा की प्रवर समिति में पड़ा हुआ है, और वहाँ अगर कुछ देखा जाए और वो पास हो जाए तो आयुर्वेद का बहुत विकास होगा। और जानते हैं मित्रों, मुझे कहना ज़रूरी है,
आडवाणी जी, चूँकि मैं था मंच पे ही था, तो मुझे वहाँ से साथ में निकलने में कोई परेशानी नहीं थी, तो मैं साथ साथ आ रहा था। और ये बात अपने से भी ज़्यादा मुझे कहनी इसलिए ज़रूरी है आज के शासकों प्रशासकों के लिए, कि ये कहने के लिए मैंने अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर पीएनवी कुरूप सर को एक तरह से पीछे धकेल करके और आडवाणी जी के पास जा करके मैं ये बात कह रहा था। और तब तक मुझे ध्यान आया, अगर मैं किसको धक्का दे रहा हूँ तो मैं अपने कुलपति को धक्का दे करके आगे पहुँच गया था। लेकिन वो हमारे कुलपति थे प्रोफेसर कुरूप साहब, जिन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा शाबाश कंटिन्यू। और दूसरे लोग होते कहीं तो मुंह फुला लिए होते कि एक लेक्चरर की औकात की मुझे धक्का दे करके चला गया आडवाणी जी के पास। लेकिन नहीं, यही क्षमता थी कुरूप सर में, उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, उसी समय कंटिन्यू। तो मैं बोला था इस बात को, तो ये होना चाहिए, आज तक नहीं हुआ। और ड्रग एक्ट 1945 में आप दीजिए, ऑब्लिक करिए फार्मेसी की जगहों पर, एम फार्मा आयुर्वेद दीजिए। फिर आप कहेंगे कि हमारे पास उतने प्रोडक्ट नहीं है। मैं मानता हूँ कि उतने प्रोडक्ट नहीं है, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन सने शुरुआत तो करिए। जब आप वहाँ पर दे देंगे तो एडमिशन लेने वालों की भीड़ हो जाएगी, इंस्टीट्यूट्स खुलने लगेंगे, जो आज कोई नहीं खोलता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी एकदम क्लियर कट नहीं दिखाई दे रही है ना। When people will see the opportunity, people will come। तो अभी तो हम लोग उसको ऑब्लिक बीएससी कर दिए हुए हैं, या एम फार्मा आयुर्वेद कहीं भी मैंडेटरी नहीं है, एक ऑप्शन पड़ा हुआ है। तो ये एजुकेशन व्यवस्था डॉक्टर वरुण सिंह और जितने भी हमारे मित्र ये जामनगर में हैं, और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता, मैं जालंधर की मैं एक एक करके आना चाहता हूँ, इसलिए अभी जालंधर अभी नहीं जाऊँगा, अभी मैं जामनगर में रहता हूँ। तो जामनगर ने बहुत अच्छा काम किया, और अभी क्लेम हुआ था 2 साल पहले कि डॉक्टर जोबन मुंडा के द्वारा कि आप जहाँ कहीं भी देखेंगे आयुर्वेदिक फार्मेसी में कहीं डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं से उसमें जामनगर का एक योगदान है, मानता हूँ इस बात को। लेकिन क्या इतना ही पर्याप्त है? वेदर इट इज सफिशिएंट? नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आपको वो एक्सपर्टाइज लानी पड़ेगी जो नाइपर में है। जी हाँ, ये जो सीरीज है नाइपर्स की, एक नाइपर आयुर्वेद का भी खुलना होगा, और वो नाइपर आप INI के माध्यम से शायद जामनगर में उसकी शुरुआत कर चुके हैं। INI स्टेटस में एम फार्म आयुर्वेद डिग्री कहीं नहीं मिल रही है अभी, INI एक ही है आयुर्वेद में, वो है इटरा जामनगर। उसके सिलेबाई या उसके सिलेबस में आप आ चुके हैं, तो एक तरह से आप नाइपर के इक्विवेलेंसी में ही हैं। तो इसको समझिए कि आपका काम नाइपर के इक्विवेलेंस में हो गया है, न कि वही जब आप एक जमाल बिल्डिंग में बैठते थे। आज ये माइक 2 बार गिर गया क्योंकि मैं जरा भावुक हो रहा हूँ आज बहुत। तो एक जमाल बिल्डिंग से नहीं ना काम चलेगा भाई, आप नाइपर के स्टेटस में हैं INI में आकर के। हाँ, आपकी सर्विस रूल्स, आपकी फैसिलिटीज़, आपकी सर्विस सिक्योरिटी, आपके ग्रेड्स भी नाइपर के होने चाहिए, तब आप नाइपर की तरह से काम करके दिखाएंगे। और रिक्रूटमेंट नाइपर की तरह से होना चाहिए। तो ये जब आप नाइपर के स्टेटस पे आएंगे, फ्रॉम रिक्रूटमेंट टू द एग्जीक्यूशन, आयुर्वेदिक फार्मेसी का भविष्य बहुत अच्छा होगा। अब आइए, 2006 में प्रोफेसर पंजाब सिंह जी वाइस चांसलर थे, उनको एक विज़न था कि नए नए कोर्स खोलने का। राजीव गांधी साउथ कैंपस वर्कशॉप में ये कोर्स खुला। भाई द वे, मैं उस समय जामनगर में ही था, वहाँ का सारा सिलेबस बी फॉर्म। अब मैं वहाँ पर थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करता हूँ कि डी फॉर्म कैसे बंद हुआ, लेकिन एक पूरी फौज है, एक सिस्टम बहुत बढ़िया वहाँ चल रहा है। इवन तो अपना हॉस्टल भी हो गया है वहाँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन क्या कमी है ये भी मैंने आपके सामने रखा, और मुझे उम्मीद है कि इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा INI के द्वारा, इटरा के द्वारा। चलो अब BHU आते हैं साहब। बड़ी चिंताजनक स्थिति हुई। प्रोफेसर
सर पंजाब सिंह ने कोर्स खोला और मैं वहाँ से सारे सिलेबस वगैरह भेज दिया था। फिर मैं नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कहीं जब तथ्य आ जाते हैं तो वो चीज़ों को बताना पड़ा। जैसे कि मुझे बहुत आज भी गर्व होता है कि मैंने कैसे आडवाणी सर जी से कहा उस बात को, और कुरूप साहब मुझसे नाराज़ नहीं हुए, मेरी पीठ थपथपाए। तो चलिए, यहाँ पर वो कोर्स खुला, खुलते ही ग्रहण लग गया इस कोर्स को। आज ये स्थिति है कि यहाँ पर कोई एडमिशन लेने नहीं आता है। भाई वो भी सेल्फ फाइनेंस में खुला था ना, जामनगर भी, और आज वो कहाँ प्रोग्रेस करके गया, ये भी सेल्फ फाइनेंस में आया था। भाई वहाँ तो एक परमानेंट पोस्ट नहीं दी गई जामनगर में, वहाँ के किसी फैकल्टी को कोई ग्रेडेड स्केल वाली सैलरी वाला बंदा नहीं है। यहाँ तो 6 पोस्ट दी बीएचयू ने ग्रेडेड सैलरी वाली लेक्चरर की, डिफरेंट जगहों से काट के 6 लोग अपॉइंट भी हुए, लेकिन सबका एक ही मत रहता था कि उसको बंद करके बीएचयू के मेन कैंपस में आ जाए। तो कोर्स कहाँ से बढ़ेगा? मैं तथ्य रख रहा हूँ, इसलिए मैं इधर उधर के शब्दों को नहीं बोलूँगा, कोई डिप्लोमेसी नहीं करूँगा। तो जब आप उस मंशा से काम कर रहे हैं कि बाढ़ ही खेत को खा जाए, तो कहाँ से बी फार्मा आयुर्वेद कोर्स चलेगा? और उस कोर्स को ऐसा ग्रहण लगा कि 2-4 बिरले ये लड़के निकल गए। वरुण हैं, शोभनाथ हैं, संभाले हुए हैं जयपुर की फार्मेसी, श्रुति हैं। तो ये बी फार्म एम फार्म आयुर्वेद का ये जो इंटरकनेक्शन बीएचयू में रहा, वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया। कभी इस एडमिशन की प्रक्रिया बीएमएस के साथ, कभी इसकी एडमिशन की प्रक्रिया बीएससी नर्सिंग के साथ, कभी इसकी एडमिशन की प्रक्रिया इंडिपेंडेंट, एक बोझ बना करके रख दिया है लोगों ने। और यहाँ के शौर्य बताऊँ मैं आपको, या शौर्य, हर पीजी की डिसिप्लिन में एक स्पेशलाइजेशन होती है। तो उस स्पेशलाइजेशन के अभाव में कितने बीएचयू के लोगों को नौकरी नहीं लगती। एक बड़ा ऐसा लड़का है यहाँ से, मुझे कुछ लड़कों के नाम लेने चाहिए, मैं ले रहा हूँ, विनीत शर्मा। उसका फॉर्म इतनी जगह रिजेक्ट हुआ, मेरे ही कलम से रिजेक्ट हुआ, क्योंकि उसकी स्पेशलाइजेशन नहीं थी। भाई एमए के लिए एक सब्जेक्ट चाहिए, एमए हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, एमएससी बॉटनी, जूलॉजी, यहाँ डिग्री देते हैं लोग एमफार। और जबकि जब मैं जामनगर में था, मेरा सौभाग्य कि मैं वहाँ से सब चीज़ें देख के सीख के आया था। कुरूप साहब के नेतृत्व में बख्शी साहब थे, मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूँ, रविशंकर सर थे, सुब्रडे सर थे, और बाकी सब में कि हाँ भाई ये चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने देखा था। हमने यहाँ आकर के कहा कि भाई एम फार्मा कोई चीज़ थोड़े ना है, एम फार्मा रसायन, एम फार्मा द्रव्य गुण, एम फार्मा फार्माकोनॉसी, एम फार्मा फार्माकोलॉजी, एम फार्मा आयुर्वेद है ना, एम फार्मा क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी, ये सब स्पेशलाइजेशंस करिए। आज तक नहीं हुआ यहाँ पे, और ईगो पर हर्ट हो गया था। मैं लेक्चरर था, बाय द वे लेक्चरर को भी नॉमिनेशन मिलता है यहाँ की रोटेशन में एकेडमिक बॉडीज़ में बैठने का। तो मैं वहाँ उठाया तो मुझे ये कहा गया था, कहूँगा मैं, एक लेक्चरर अब हमको समझाएगा कि डिसिप्लिन क्या रखनी चाहिए। और बड़े प्रोफेसर साहब थे, डीन भी हुए, एपीसी के चेयरमैन भी हुए, उनका कमेंट था ये। और आज तक यहाँ नहीं हुआ है। आज तक बीएचयू में डीन होकर के लोग रिटायर हुए हैं, अभी नहीं हो पाई डिग्री, नहीं हुए डिवीज़न, जिसके चलते वहाँ के बरकचा के लड़कों का बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों भाई वरुण, काय कह दिए हमको बोलने के लिए, अब सुनो, सब बोलूँगा ही मैं। तो अभी बीएचयू उसको ये भी नहीं कर पाई है। और उस कोर्स का जितनी बुरी हालात बीएचयू में, अभी मैंने अपने वाइस चांसलर साहब एक दिन आए थे पिछले महीने में इंटरेक्शन के लिए फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद में, और मैंने इसको बहुत मजबूती से रखा, जो भी मुझे समय मिला, काफ़ी समय उन्होंने दिया। धन्यवाद प्रोफेसर एस के जैन साहब को। कहाँ वो दूसरी बार किसी को नहीं बोलने दे रहे थे, मैं 5 बार बोला, और हर बार वो कुछ पूछ लिया करते थे हमसे, तब मैं बोलता था। तो मैंने बताया कि सर ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ये प्रोमाइजिंग ब्रांच इस समय की ग्लोबल रिक्वायरमेंट की बीएचयू में बंद होने के कगार पे है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने कहा डीन साहब बगल में हैं, बताएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट डिग्री चली रही है उसकी, ठीक है, बढ़िया काम किया जामनगर के बाद तो जालंधर ने, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और सीरीज आप पेपर सुन के देखिए ना, सौरभ सिंह के, डॉक्टर सौरभ सिंह के, डॉक्टर दिलीप सिंह बघेल के, वो लड़का, फिर मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वही वो है ना कि अपना बच्चा का तो नाम याद रहता है। तो जब मैं जामनगर में था तो ये लोग भी फार्मा आयुर्वेद कर रहे थे, इसलिए इनके नाम याद हैं।
एक अभी बहुत अच्छा बच्चा है, जब मैं आ गया जामनगर से तब वो हाथ पे था, बिल्कुल मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, भाई माफ़ करना, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और वो अभी अपीयर भी हुआ था यहाँ पर डिशू के लिए, प्रोफेसर प्रजापति जी के साथ उसने काम किया था। लेकिन हाँ, आप सब समझ गए होंगे कि मैं किसको रिफ़र कर रहा हूँ। तो इतने अच्छे वहाँ पर सीरीज चल रही है और सारी चीज़ें आ रही हैं। तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एम फार्मा, बी फार्मा, आयुर्वेद के कोर्सेज़ में बहुत अच्छा काम कर रही है। वहाँ के सिस्टम को भी मैं अप्रिशिएट करूँगा। और वो तो बहुत अच्छे पेटेंट वो लोगों ने लिया। शायद जामनगर के IAPS से कोई पेटेंट नहीं लिया है, संभवतः पर्सनल पेटेंट लिए होंगे लोग तो लिए होंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन का पेटेंट अभी नहीं है जहाँ तक मुझे जानकारी है। वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का के माध्यम से पेटेंट है। कुडोज टू यू ऑल ऑफ द एम फार्मा आयुर्वेद ग्रेजुएट्स एंड ऑल द कलीग्स देयर एट द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर। केरल में भी कुछ कोर्सेज चलते रहे, बंद हो गए, क्योंकि केरल तो ऐसे ही, केरल का आयुर्वेद वहाँ के व्यक्तिगत लोगों से है। केरल की सरकार कभी सपोर्ट नहीं कर रही है आयुर्वेद, ये तथ्य है। इसको मैं 10वीं बार बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ 11वीं बार। वहाँ भी कोर्स नहीं चले। आयुर्वेद जिंदा है केरल में, मगर व्यक्तिगत सरकारी तंत्र उसको राजाश्रय तो बिल्कुल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुछ और कोर्सेज चले। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में भी चला था, मुझे जहाँ तक मेरी याददाश्त साथ देती है। उसका क्या हाल सहस्र है, क्या हाल है, मुझे नहीं पता इस समय। जो नहीं पता वो नहीं पता। तो मित्रों, आज क्या चाहिए इस कोर्स के लिए? आप फार्मेसी जो है, आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डाबर हैं, बैद्यनाथ हैं, दूध पापेश्वर है, केरला आयुर्वेद लिमिटेड है, आयुर्वेदशाला है, आयुर्वेद फार्मेसी है, अब बिग 15 जिनका 500 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस है। जब उन लोगों के, उनके CEO से, उनके MD से, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर से, श्री रंजीत पुराणिक जी से जब बातचीत होती है तो क्या कहते हैं? हमें जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए सभी लोग, डॉक्टर जोबन मोढ़ा से लेकर के और जो लोग वहाँ पर सब लोग काम कर रहे हैं, हमें जो चाहिए आप नहीं दे रहे हैं। तो उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए वेल ट्रेन्ड एम फार्मा आयुर्वेद इन क्वालिटी कंट्रोल, इन फार्माकोग्नोसी, इन द एम फार्मा आयुर्वेद, इन द फार्माकोलॉजी एंड ऑफ कोर्स इन द रसशास्त्र एंड द्रव्य गुण विद द आयुर्वेदिक क्लासिकल फ्लेवर एंड द टेक्सचर। अब इसका उत्तर देना है, खाली हम न हुए से काम नहीं चलेगा। इसका उत्तर देना है जो इंडस्ट्री आपसे पूछ रही है। ठीक है, सरकार की तरफ से लिखना है, मैंने गिना दिया कि सरकार उस पर काम करेगी, एक निष्पक्ष, कि आपको जगह, आपके अपॉइंटमेंट, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ सरकार का देना कर्तव्य, सरकार करेगी, पक्का करेगी। और ये नेतृत्व तो कर ही रहा है वैद्य राजेश कोटेचा जी का। देखिए कितना CCRS में आप लोग गए। प्रोफेसर KS धीमान साहब जब DG थे तो उन्होंने कितनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, परमानेंट नौकरियां मिली आप लोगों को। तो लेकिन अभी और चाहिए। लेकिन सवाल, यक्ष प्रश्न, कि जो इंडस्ट्री कहती है कि हमें जो चाहिए वो आप नहीं दे रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? हम, बिल्कुल हम ही जिम्मेदार हैं। तो एम फार्मा आयुर्वेद की एजुकेशन को उस स्टैंडर्ड पर ले जाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि आपका कैंपस प्लेसमेंट होने लगे। और हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे, जिस लेवल पे रिक्वायर्ड है। सिप्ला अगर एक हर्बल डिवीज़न ले आए तो कहे कि नहीं, हमको एम फार्मा आयुर्वेद जामनगर चाहिए, हमको एम फार्मा आयुर्वेद जालंधर चाहिए, LPU का। ये क्रेडिट आपकी कब आएगी? ये क्रेडेंशियल्स कब आएंगे? जब LMB का आए और कहे कि नहीं, हमारी हर्बल यूनिट में यहाँ के 2 जगह के PG ही काम करेंगे। वो ले आइए ना, वो चैलेंज है ना। उस तरह से ट्रेंड किया जाए कि जब इंडस्ट्री कहे कि हाँ, हमें वो मिल रहा है जो हम चाहते हैं, हम आपके यहाँ आ रहे हैं कैंपस प्लेसमेंट के लिए। लेकिन अभी तो इंडस्ट्री कहती है कि जो हमें चाहिए आप नहीं दे रहे हैं। तो इसका उत्तर देना है भाई। सरकार अपना काम करे, सरकार अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, इंडस्ट्री आपको लेने को तैयार है, इंडस्ट्री इज़ रेडी टू वेलकम यू। मैं जब भी बात करता हूँ, मेरा सौभाग्य है कि मैं टॉप क्लास से बात कर लेता हूँ ऑन ए मिनट ऑफ कॉल। यस, किसी अहंकार से नहीं, विनम्रता से कह रहा हूँ। चाहे जो कंपनी हो, जिसके भी CEO और MD से बात करनी हो, वो मेरी बात सुनते हैं। किसी का भी आप नाम ले लीजिए सीधा। और फिर जब मैं आपकी चर्चा में करता हूँ
क्योंकि मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। आपके कोर्स की शुरुआत का एक मैं फाउंडर मेंबर हूँ, वही एक कमरे वाला। जब एक दिन में 6 क्लास लेते थे, डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म साहब, लेकिन इसका जवाब यही होता है। मैं वही कहता हूँ कि हाँ ठीक है, डाबर से लेकर के नीचे सांडू तक, कि आपको वो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हमारे मित्र सब प्रयास कर रहे हैं, आपको वो कैपेबिलिटी मिलेगी हमारे प्रोडक्ट्स में, बी फार्मा आयुर्वेद और एम फार्मा आयुर्वेद में, जो आप चाहते हैं उसी स्पेशलाइजेशन के साथ मिलेगी। QC से लेकर के फार्माकोगनोसी, फार्माकोलॉजी और RSBK और DG तक। समय दीजिए थोड़ा, ज़रूर मिलेगी। तो ये हमें 2 लेवल पर काम करना है। पहला कि समस्त सरकारें, केंद्र सरकार मुख्य रूप से हमारी काउंसिल को ले आए। लेटरल पोजीशंस या हॉरिजॉन्टल पोजीशंस जो भी क्रिएट हो रही हैं, थोड़े लॉज को अमेंड करें, जिससे कि हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। एम फार्मा आयुर्वेद कहीं पर स्पेसिफिकली हो, जैसे कि आप टीचिंग में कह देते हैं कि नहीं हमको अंडर ग्रेजुएट नहीं चाहिए, हमें MD आयुर्वेद इन दिस चाहिए, वैसा ही करिए ना कहीं पर कि एम फार्मा आयुर्वेद ही चाहिए। है भी, लेकिन बहुत कम जगह पर है ना। और बी फार्मा आयुर्वेद के लिए भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, उसको भी करना होगा। ठीक, तो हमारे पास एक NCISM है, लेकिन हम उसको फार्मेसी नहीं दे सकते। वहाँ ऐसे ही अभी सोआरिकपा भी आ रहा है, ऐसे ही ढेर सारे बोर्ड्स हैं। बहुत अच्छा, रियली बहुत अच्छा, उनके इन सारे रिफॉर्म्स को मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। एक विद्यार्थी कर रहे थे आयुर्वेद का, और सबसे बढ़िया तो अभी बोर्ड ऑफ एथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन ने किया 4 दिन पहले पंजाबी बाग में, कि वो कार्यक्रम था कि आपको हेल्थ पोर्टल पर कैसे अपने आप को रजिस्टर करना है। क्या बात है, तालियां आप NCISM के लिए और वर्तमान नेतृत्व के लिए। इन टोटलिटी द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, वैद्य राजेश कोटेचा जी। तो सर, अब मैं सेक्रेटरी साहब को एड्रेस कर रहा हूँ, शायद मेरा वीडियो उनको आप लोगों में से कोई ना कोई पहुँचा ही देगा, और कोई ना कोई नहीं, मैं खुद पहुँचा दूँगा। इतना विशेषाधिकार मुझे प्राप्त है, मैं लिंक भेज दूँगा सर को कि देख लीजिएगा। शनिवार रविवार में जब उनको थोड़ी सी छुट्टी होगी, थोड़ी सी फुर्सत होगी, कि उनके स्तर पर हमें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। हमें लॉज में जगह चाहिए। और हमें का मतलब, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में लोग डिस्कस करते हैं, हाई कोर्ट में डिस्कस करते हैं, तो वकील हमें बोलते हैं, वो क्लाइंट का नाम नहीं बोलते। जजेस भी ऐसे ही पूछते हैं कि हाँ, तो वो अपने क्लाइंट्स की तरफ से बोलते हैं कि हाँ मुझे ये तकलीफ है। जज साहब अभिषेक मनु सिंघवी राहुल गांधी बन के बोलते हैं, और महेश जेठमलानी पुणेश मोदी बन के बोलते हैं। वहाँ वो महेश जेठमलानी नहीं होते, पुणेश मोदी होते हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी नहीं होते, राहुल गांधी होते हैं। वो आई करके बोलते हैं। तो मैं भी यहाँ पर वही टर्मिनोलॉजी में हमें बोल रहा हूँ। हमें का तात्पर्य है एम फार्मा आयुर्वेद का पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर, बी फार्मा आयुर्वेद का यूजी स्कॉलर, अंडर ग्रेजुएट कोर्स का प्रोडक्ट हमें चाहिए। हमें राजाश्रय चाहिए, हमें अवसर चाहिए, और फिर हमारी संस्थाओं में वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए। हमें नाइपर चाहिए, INI को नाइपर के स्टेटस पर ले जाइए, रिक्रूटमेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक। हमें और भी संस्थाएं चाहिए। आपने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिया, तो एक अलग से नाइपर ही दे दीजिए, जो कि वो प्रोटोकॉल में चल रहा था। जब सर आपने मुझे बुलाया था और कहा था कि ये आपको देना है कि ये इंस्टीट्यूट जामनगर में खुले, न कि कमला नेहरू नगर में खुले, ऐसा गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही थी। ऐसे एडवाइजर साहब थे वहाँ कि उनका ये था कि यहाँ पर PLIM है, वहीं पर सटे इसको एक इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल साइंसेज का, नेशनल इंस्टीट्यूट आयुर्वेद का वहीं खोल दिया जाए। तो सर याद करिए उन दिनों को। और अब तो कलम आपके हाथ में है, दीजिए नाइपर आयुर्वेद का, चाहे जहाँ दीजिए सर, जामनगर में ही दे दीजिए, लेकिन एक नाइपर दीजिए सर आयुर्वेद को, उसके स्टेटस का। जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आया, तो नाइपर का स्टेटस का एक आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंस का इंस्टीट्यूट चाहिए सर। और वो दीजिए, तब देखिए कि इंडस्ट्री कैसे डेवलप करती है। जब आयुर्वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति, आयुर्वेदिक एटीट्यूड का व्यक्ति, आयुर्वेदिक अंडरस्टैंडिंग का व्यक्ति जब जाएगा, इन जगहों पर रिक्रूट होगा, तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेगा। तो मैं आज एक ईमानदार प्रस्तुति किया हूँ।
मैं वैसा मानता हूँ मैं, क्या नहीं ईमानदार प्रस्तुति की। जामनगर, जालंधर दोनों बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। जालंधर तो थोड़ा अच्छा है इन द सेंस ऑफ द पेटेंट, इन द सेंस ऑफ द पब्लिकेशन। यस, ट्रू, kudos to the Jalandhar in the terms of the patent, in the terms of the publication. What is Jamnagar is lacking? In spite of the being founder, सब जामनगर के प्रोडक्ट वहाँ पे सारे काम कर रहे हैं, लेकिन मातृ संस्था तो मातृ संस्था है, जामनगर द ग्रेट। और अब आप मुझसे पूछे कि मैंने क्या किया, बिल्कुल मैं भी उत्तरदायी हूँ, मैं भी उत्तर दूंगा। मैंने किया सिर्फ ये है कि सारे लड़कों को जो भी हमारे साथ को लर्नर के रूप में आए हैं आज भी, उनको मैं इस आयुर्वेदिक फार्मेसी की महत्ता को समझाता हूँ, खुद प्रयास करता हूँ, खुद लगता हूँ, चाहे वो पब्लिकेशंस हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, क्योंकि मेरी ये समझ ये कहती है मुझे कि आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत और आयुर्वेदिक फार्मेसी का ग्लोबल प्रोपोगेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आपको क्वालिटी, सेफ, एफिकेशियस आयुर्वेदिक मेडिसिन नहीं मिलती हैं। और आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको एमडी आयुर्वेद या किसी प्रोडक्ट से नहीं मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब एक फार्मेसी की एक अलग ब्रांच, जैसा कि काउंटर पार्ट में है, पैरेलल रन करेगी। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन की ब्रांच हुई BAMS, और ये आयुर्वेदिक फार्मेसी की ब्रांच हुई B.Pharm आयुर्वेद। जब ये पैरेलल सेपरेट एक इक्वल अपॉर्चुनिटी के साथ डेवलप करेंगे तब आप पोजीशंस पर आएंगे। और इसके लिए सबको काम करना है, राइट फ्रॉम सरकार टू द सहकार। सहकार शब्द मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबको मिल करके काम करना है। तो एकेडमिया, छात्र, मैं सुनता हूँ जो परमानेंट एकदम ग्रेडेड सैलरी के लोग हैं BHU में, ऐसा एक भी आदमी जामनगर में नहीं है। अब हो गया होगा तो मुझे नहीं पता INI के बाद, लेकिन जब वो सेल्फ फाइनेंस में चलता था तो कहते हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं आते। जब आपका एडमिशन का स्टफ ही नहीं सही है तो पढ़ने क्यों आएगा? जब वो देखता है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, और कम बच्चे आते हैं, कम बच्चे पढ़ते हैं। और मज़ेदार बात जानते हैं आप, बोलता चलूँ लाइटर मूड में, हमेशा जो गोल्ड मेडल जाता है ना BHU की फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद का, यहाँ पर ये है कि जब कन्वोकेशन में हर फैकल्टी का एक गोल्ड मेडलिस्ट होता है। बड़ी मज़ेदार बात है मित्रों, गोल्ड मेडलिस्ट होता है हर फैकल्टी का एक, जिसको कि वाइस चांसलर गोल्ड मेडल मिलता है कन्वोकेशन का, साइंस से, आर्ट्स से, सोशल साइंस से, कॉमर्स से, मैनेजमेंट का। तो फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद का गोल्ड मेडलिस्ट हमेशा से M.Pharma आयुर्वेद का लड़का होता है। इसके आगे तो बोलने की हिम्मत मुझ में नहीं है कि क्यों होता है, क्योंकि वहाँ दिल खोल के नंबर दिए जाते हैं और MD आयुर्वेद को नंबर नहीं दिया जाता यहाँ पर 16 डिसिप्लिन में फाइनल में। तो वाइस चांसलर मेडल फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद का पिछले कई वर्षों से M.Pharma आयुर्वेद का लड़का ले जा रहा है, जो वहाँ के 6 लड़कों या 7 लड़कों, इतना ही एडमिशन होता है 30 की सीट पे, 15 की सीट पे, रिड्यूस होती जा रही है। गोल्ड मेडल मिलता है M.Pharma आयुर्वेद को, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद का वाइस चांसलर गोल्ड मेडल मिलता है, बधाई हो। लेकिन उस गोल्ड मेडल की प्रश्न चिन्ह लगाने का साहस नहीं कर रहा हूँ मैं, विद्यार्थियों के उस पर मैं कोई साहस नहीं कर सकता। अरे बड़ी गोल्ड मेडलिस्ट को ढेर सारा स्कॉलरशिप मिलती है, वो भी M.Pharma आयुर्वेद के गोल्ड मेडलिस्ट को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का मिला है। बहुत सारे लोगों ने किया, मैंने खुद फॉरवर्ड किया है, मैं खुद कोशिश किया हूँ। और उनको स्कॉलरशिप साइंस टेक्नोलॉजी या UGC में है कि PG के गोल्ड मेडलिस्ट को ही इतनी अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, वो M.Pharma आयुर्वेद को मिलता है BHU के, क्योंकि वो वाइस चांसलर गोल्ड मेडल पाता है। लेकिन इन टोटलिटी क्या है? इन टोटलिटी ये है कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि संकाय प्रमुख जो नए नए हुए हैं, प्रोफेसर PK गोस्वामी जी, जो 1 अगस्त को हैं, मुझे कोई शोकॉज नोटिस नहीं देंगे कि मैं इतना सत्य क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन ये बात तो मैंने प्रोफेसर SK जैन साहब के भी सामने कहा था, वाइस चांसलर साहब के, तो मैं पब्लिक के भी सामने कह रहा हूँ। BHU का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और वो किसी कोर्स को बंद होने के कगार पर आ जाए
दुर्भाग्य की बात है। आज बीएचयू को प्रिंसिपल ऑन द इक्विवेलेंसी, ऑन द फैसिलिटीज अवेलेबल एंड आइडियल पोजीशन देखा जाए तो बी फार्मा आयुर्वेद कोर्स यहाँ भी 2005 में से खुला हुआ है, एम फार्मा आयुर्वेद साइमल्टेनियसली खुला हुआ है। आज इसको जालंधर और जामनगर से आगे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, न तो वो जालंधर में है न वो जामनगर में है। यहाँ पर ग्रेडेड फैकल्टी है, फिर भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो एजुकेशन की लाइन में हमें बहुत आगे बढ़ना है, हम बढ़ सकते हैं, हम एक साथ हम होंगे कामयाब सर। और आज मैं सर इस समय फिर से सेक्रेटरी साहब को कह रहा हूँ, एक नाइपर दीजिए, भारत के भूभाग में कहीं भी दीजिए, और तब देखिए सर की आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिक्स की लाइन कहाँ होती है और इसकी दशा और दिशा कैसे परिवर्तित होती है और कैसे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। बहुत बहुत सर आपका आभार सेक्रेटरी साहब का। और अब डॉक्टर वरुण सिंह, जो आपने मुझे स्टिमुलस दिया कि नहीं मैं इस पर बोलूं, शायद आप भी नहीं उम्मीद किए होंगे कि मैं इतना ईमानदारी से बोलूँगा और सत्य बोलूँगा। डॉक्टर जोबन मोड़ा या डीन जालंधर, आप सब लोगों से बहुत उम्मीद है। मैं चाहता हूं कि जालंधर वासियों तक भी ये बात आवाज़ पहुंचे कि एलपीयू के काम की सराहना की जा रही है, जामनगर के काम की सराहना की जा रही है। प्रोडक्ट्स, मेरा सपना है कि हाईएस्ट पैकेज वाले, कैंपस प्लेसमेंट वाले, आपको पता है बीएचयू का एक प्रोडक्ट एमडी रसास के डॉक्टर सीके कटियार 60 लाख तो आज से 10 साल पहले था उनका पर एनम कॉस्ट टू द कंपनी। 10 साल पहले 60 लाख। कुछ इस तरीके के प्रोडक्ट्स निकले ना, ठीक है। अंत में जाते जाते चलते चलते चौथा ऑफर मुझे भी था। अभी एक कारपोरेट, अभी तक तो 3 आए थे, जामनगर से ही शुरू है, लोग जानते हैं। 2004, 12, 16 और अभी 23 में भी एक ऑफ़र मेरे पास आया कि आप कॉर्पोरेट ज्वाइन करिए। नहीं जा रहा हूँ, जिद है लड़कों को पढ़ाने की, वहाँ भी नहीं गया। और शायद इस समय, मैं उस समय तो जामनगर में कहता था कि नहीं मैं 20 साल की नौकरी करके कॉर्पोरेट में चला जाऊँगा, मुझे बस 20 साल ही पढ़ाना है। डॉक्टर DBA नारायणन, सब लोग जानते हैं फार्मेसी की फील्ड में उनको, 10 साल प्रोफेसर थे सागर यूनिवर्सिटी में, उसके बाद कॉर्पोरेट में गए। कुछ ऐसी प्लानिंग। कॉर्पोरेट बहुत अच्छी चीज़ है, मेहनत है, चैलेंज है, आपकी रिस्पेक्ट है, लेकिन एक टेस्ट भी होता है। फिर थोड़ा सा सब कुछ ठीक हो, कॉस्मिक प्लान ठीक हो, तो कॉर्पोरेट में जा करके और आयुर्वेद को आगे बढ़ाना है तो नाइपर चाहिए। जालंधर को और काम करना होगा, जामनगर को और काम करना होगा, और बीएचयू को तो बेसिक से काम करना होगा। पहले तो सीट भरी जाए। मुझे कहने में शर्म महसूस होती है कि हमारी बीएचयू के हर एक सीट पर हज़ारों की दावेदारी होती है। एक बीएससी की सीट पर आपको पता है 180 सीट है में से बीएससी मैथ के लिए यहाँ पर, और उसके लिए 60,000 लोग अपीयर होते हैं। आप कैलकुलेट कर लीजिए कि बीएससी मैथ की एक सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं। 60,000 ऑन 180, और हम यहाँ एक सीट बी फार्मा आयुर्वेद और एम फार्मा आयुर्वेद पर, नो टेकर फॉर एडमिशन। सेम बीएचयू, सेम ब्रांड, सेम फैसिलिटीज। चिंतन की आवश्यकता है, मनन की आवश्यकता है। धन्यवाद, आभार, और मिल के काम करना होगा, तभी समस्या का समाधान होगा, और संयुक्त रूप से करना होगा। हमें आयुर्वेदिक फार्मेसीज़ के जितने भी टॉप हैं, मैं फिर से उन सारे CEOs और MDs को इस मंच से, अपने YouTube चैनल से अनुरोध करता हूं, अपॉर्चुनिटी दीजिए आप एम फार्मा आयुर्वेद स्टूडेंट्स को, जामनगर के, जालंधर के, आज की तारीख में, या जहां कहीं से भी निकल रहे हों। आप देखिए, हम काम करके आपको दिखाएंगे, और पक्का काम करके दिखाएंगे। फिर से धन्यवाद, आभार। थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा करिएगा, लेकिन जब आदमी भावुक होकर के और मन से बोलता है तो मन की बात नहीं, ये दिल की बात थी।
धन्यवाद, नमस्ते।